ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਆਲ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 10 ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਿਰਰਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਵ ਮਿਰਰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ, ਸਫੈਰਿਕਲ ਯਾਨੀ ਕਨਕੇਵ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਵਤਲ ਆ, ਉੱਤਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਨਵੈਕਸ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੇਨ ਰੇਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੈਕਸਟ 4th ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਮੇਜਿਸ ਫੋਰਮਡ ਬਾਏ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਆ, ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇ ਗੁਣ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੁਆਰਾ ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇ ਗੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੇਸ ਨੰਬਰ A। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੇਸ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੰਤ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਨੰਤ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣ ਅਗਰ, ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਵੈਨ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਐਂਡ ਦ ਰੇਜ਼ ਆਰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਆ, ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ C ਅਤੇ P 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ। ਵਟ ਇਜ਼ C ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਔਰ P4 ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਡਰੋ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾ ਦਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਪੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੋਲ ਤੋਂ F ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੋਲ ਤੋਂ F ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਓਨੀ ਪੋਲ ਤੋਂ C ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ FP 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਿਆ ਆ ਅਤੇ CP ਮੈਂ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਡਰੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਲਾਈਨ ਡਰੋ ਕਰੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਆਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ P। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ P ਤੋਂ ਸਕੇਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੇਲ ਅਗਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਲਿਆ P ਤੋਂ C ਤੱਕ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4। ਸੋ ਇਸ ਹੈਗਾ ਕਿ FP ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਂ 2 ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ CP ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਂ 4 ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਹੀ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ 3 ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 6 ਲੈ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ P ਤੋਂ 0 ਰੱਖੋਗੇ, 0 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਉਹਨੇ। ਕਲੀਅਰ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਅਨੰਤ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣ ਕਿਰਨਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਰੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੈਰਲਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਸਟ ਵੇਟ ਬੇਟਾ। ਸੌਰੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ C ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ F ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ P ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਯੈਸ, ਜਸਟ ਵੇਟ। ਯੈਸ, ਐਰੋ ਕਿਉਂ ਡਰੋ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਫਲੈਕਟਿਡ ਰੇ ਦੇ ਲਈ। ਗॉट ਇਟ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ F। ਕਲੀਅਰ,
सो वो एफ ते मीट कर रही ने आफ्टर रिफ्लैक्शन। सो उस तो बाद असी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किहड़े करने हैं जी। इत्थे जिहड़ा प्रतिबिंब बनया वो तुहाडा एफ ते बनेगा, इत्थे बनेगा। सो प्रतिबिंब के गुण आ गए, प्रतिबिंब कित्थे बनेगा एफ ते। प्रतिबिंब का आकार किदां दा आ, बिंदु का बिल्कुल छोटा जिहा। हुण देखो दूर वस्तु अनंत ते, अनंत यानी जिवें सूरज आ, सूरज की किरनां ते अगे मैं दर्पण रख देवां अवतल दर्पण, ये ओ कंडीशन आ। क्लीयर। और सूरज तो जिहड़ियां भी बहुत दूर तो किरनां आउंदियां ने हमेशा पैरल ही हुंदियां ने, पैरल दे अंदर से असीं इदां हुंदियां ने। क्लीयर है। चलो सो एफ ते बनिया। क्लीयर। सो बिल्कुल ही बिंदु के आकार का बनिया, इत्थे छोटा जिहा। अगर मैं ये इत्थे पेपर रखा, एक स्क्रीन रख देवां तो उहदे ते मैनूं बिल्कुल छोटा जिहा सूरज दिखाई देगा, बिंदु जिहा। सो वास्तविक, वास्तविक मतलब असल च ये मीट करदियां ने आफ्टर रिफ्लैक्शन, ये सच विच मीट करदियां पईयां ने। सो जो सच विच मीट करदियां पईयां ने, मिलदियां ने, उत्थे वास्तविक प्रतिबिंब बनदा। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही उल्टा हुंदा है। नीचे मैं इंग्लिश च लिखिया है। सो कहंदा एट एफ यानी फोकस ते, टू द पॉइंट मतलब बिंदु दे आकार दा, रियल यानी वास्तविक, इनवर्टिड यानी उल्टा। सो क्लीयर होया फर्स्ट केस। सो इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ां, तुसीं नाल ही ड्रॉ करना कॉपी ते। क्लीयर। चलो नैक्सट चलदे आ। सो नैक्सट केस आ गया, सेम केस जो निकलेगा तो नैक्सट केस भी केस नंबर 2, सॉरी केस नंबर ए का ही सैकेंड पार्ट है बेटा इत्थे। ठीक है। जद वस्तु अनंत ते होवे। ठीक है। जदों वस्तु कित्थे होवे, अनंत ते होवे। क्लीयर। हुण अनंत ते हैगी आ, पिछला केस भी अनंत सी, पर उत्थे जिहड़ियां किरनां सी वो मुक्त धुरे दे समानांतर सी। इत्थे किरनां मुक्त धुरे दे समानांतर नहीं है, थोड़े एंगल ते आ रही ने। तो तुसीं देख सकते हो अगर रेज इत्थों आ रही ने, मान लो ए रेज ने इत्थे, पर मुक्त धुरे दे समानांतर नहीं आ। क्लीयर। सो असीं इहनूं मैं तुहानूं दिखा दी। तो फिर भी कुछ एंगल्स मैं तुहानूं दस्से सीगे कि हमेशा अगर मैं इत्थे ड्रॉ करा, इहदे अकॉर्डिंग जिहड़ा इत्थे एंगल बनेगा। ठीक है। इत्थे असीं इन्ना कर देने, जस्ट फिर मैं इत्थे अभिलंब ड्रॉ करा तो जिहड़ा इत्थे एंगल आई आएगा और इत्थे एंगल आर आएगा, दोनों सेम होने के कारण ही कुछ ऐदां दी इहदी अलाइनमेंट हो जाती आ कि यस कुछ इदां दी अलाइनमेंट हो जाती कि जिहड़ी रे हुंदी आ आफ्टर रिफ्लैक्शन ऐदा निकल के आंदी आ कि सानू ओदी जिहड़ी इमेज आ वो फोकस ते बनदी दिखाई दिंदी आ। बट इस केस दे विच थोड़ी जी ओदी साइज़ बिंदु के आकार का बिल्कुल नहीं होंदा, थोड़ा जिहा बन जाता है। ठीक है। सो इत्थे तुसीं देखोगे कि इत्थे प्रतिबिंब के गुण की आए, एफ ते बनी ठीक है प्रतिबिंब, यानी एट एफ वेरी स्मॉल। ठीक है। स्मॉल लिखा है वर्ड, इत्थे आपां डिमिनिस्ड भी लिखते हैं वर्ड, डिमिनिस्ड हुंदा है वैसे वर्ड। ठीक है। सो डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड मतलब छोटा। ठीक है। वेरी डिमिनिस्ड मतलब बहुत छोटा। ठीक है। सो वास्तविक बनया। ठीक है। वास्तविक मतलब रियल च मीट कीतियां। उल्टा, उल्टा तुहानूं दस्सिया सी वास्तविक हमेशा उल्टा ही हुंदा है। क्लीयर है केस। सो पहले केस आप देखिए दोनों केसेस इक्को जिहे ने, थोड़ा जिहा फर्क है, इत्थे भी अनंत है और इत्थे भी अनंत है। बट केसेस थोड़ा जिहा फर्क की है, इत्थे बिल्कुल बिंदु के आकार का बनता है। ठीक है। पर उत्थे जिहड़ा है बिंदु के आकार का नहीं बनता। क्लीयर। थोड़ी जी साइज़ इनक्रीज़ हो जाता है। नाउ ऑन मूविंग फर्दर यानी केस बी। चलो केस बी देखते हैं असीं। केस बी की आ, कहंदा जदों वस्तु सी तो परे होवे। की केस बोलिया, सी तो परे होवे। ठीक है। सो इत्थे देखो ए सी आ, ए एफ आ और ए पी आ। ठीक है। तो वस्तु कित्थे है, ए वाली, सी तो पिछे। ठीक है। सो जदों वस्तु सी तो परे होवे, हुण इत्थों वस्तु है एक पर एक देखनी है, स्केल दे नाल ही तुसीं करना सारा कुछ, मैं भी स्केल नाल ही कीता। ठीक है। सो एक रे आई बिल्कुल मुख धुरे दे पैरल आई। ठीक है। रे जो आंदी है टकरान तो बाद तुहानूं दस्सिया सी की होएगी, फोकस चों उन्हें लंघना है। इत्थे जिहड़ा फोकस बिंदु आ उहदे चों तुसीं स्केल रख के लंघाओगे। ठीक है। सो एक रे देखो इत्थों मैं ਲਈ सी चों पास कर दी, जिहड़ी सी च पास कर दी है वो वापस भी सी तो ही जाती। उस दिन कीता सी ना असीं, जिहड़ी पैरल आ वो फोकस चों लंघेगी, जिहड़ी सी चों आंदी है वो सी चों ही पास कर दी है। सो देखो तुसीं इत्थे असीं चेंज कर लेने कलर, जस्ट फिर हाँ जी आ देखो इत्थे ए मीट कर दियां पईयां ने। ठीक है। सो आ ऑब्जेक्ट आ। ठीक है। ए साडी
इमेज, आ साडी इमेज आ गई। ठीक है, ए ओ फॉर ऑब्जेक्ट लिखता, आई फॉर इमेज लिखता। हुण देखो इत्थे ऑब्जेक्ट का साइज़ वड्डा है, इत्थे इमेज का साइज़ छोटा है। क्लीयर। सो इत्थे प्रतिबिंब के गुण किवें दे आ गए, सी ते पी दे सी ते एफ दे विचकार। देखो इत्थे सी ते एफ दे विचकार बन रही आ। क्लीयर। और छोटी आ, देखो ऑब्जेक्ट वड्डी आ, वस्तु वड्डी आ, ऑब्जेक्ट अगर इन्नी आ तो वह इमेज का साइज़ छोटा आ रहा और उल्टा आ रहा। ठीक है, सो छोटा यानी सिखाया से डिमिनिश्ड याद रखना तुसी। सो बिटवीन सी एंड एफ ए पॉइंट हो गया तुहाडा। ठीक है, छोटी आ यानी डिमिनिश्ड आ, वास्तविक यानी तुहानूं दस्सिया सी जदों भी ओरिजिनल च मीट करदियां ने, देखो आफ्टर जान तो बाद ये ओरिजिनल च मीट कर रही ने इत्थे। सो ये वास्तविक आ ते नाल ही उल्टी आ। सो ये केस आ गया तुहाडा उदों जदों सी तो परे होवे, जदों सी तो परे होवे सी ते एफ दे विचकार बन रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की कह रहा है, नेक्स्ट केस कह रहा है जदों वस्तु सी ते होवे। देखो केस वेरी इंपॉर्टेंट जो बनिया जाता, वैसे सारे केसेस इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा अलग आ। सो ये कहता जदों सी ते ऑब्जेक्ट हो, वन ऑब्जेक्ट इज़ एट सी। ठीक है, सो इस केस के विच देखो सी ते ऑब्जेक्ट रखी हुई है। ठीक है, मतलब सीधी आ उपर नूं। हुण इत्थों मैं दिखा रही हाँ रे इधर गई। ठीक है, कलर चेंज कर दिया। ठीक है, सो टकरान तो बाद तुहानूं दस्सिया सी इत्थे एफ आ, एफ च पास करेगी। क्लीयर। तो एक रे एफ चो लंघ रही आ। ठीक है, उन्होंने असी ग्रीन कलर ही लै लैने, वेट करो। यस, एक एफ चो लंघ रही। ठीक है, तो वो की हो जाती है, वो आफ्टर रिफ्लैक्शन यस पैरेलल हो जाती है। सो तुसीं इत्थे देख सकते हो, इत्थों मैं तुहानूं कलर चेंज करके दिखा देने आ। तुसीं देख सकते हो कि इस तरह इत्थे किते जाके ये वेट इत्थे किते जाके मीट कर दिया पई ने। और अगर मैं इनू एक्सटेंड करा, ठीक है, अगर मैं इनू एक्सटेंड करा तो ये देखो उपर अगर इदा सी बनिया सीगा, सी ते आ ऑब्जेक्ट सी। ठीक है, ए मुख तुरा तो नीचे ही ओदे इमेज आ गई। सो आई इमेज नीचे आ, ऑब्जेक्ट उपर आ। सो यह केस इस करके इंपॉर्टेंट आ क्योंकि इस केस दे विच जे सी दे उत्ते ही ऑब्जेक्ट आ ते सी दे उत्ते ही इमेज भी बनती आ। सो पढ़ते हैं प्रतिबिंब के गुण, सी ते होगी। ठीक है, सो ये सी ते ही ऑब्जेक्ट आ ते सी ते ही प्रतिबिंब आ। बराबर आकार का, एक चीज़ याद रखनी, जिन्ना आकार ऑब्जेक्ट का वा उन्ना ही आकार इमेज का भी आना है। ठीक है, सो वास्तविक अते लास्ट उल्टा तुहानूं सिखाया सारे पॉइंट्स। ठीक है, वास्तविक हमेशा उल्टा होंदा है। सो नैक्सट चलते हैं जी असी डी केस ते। डी केस की कहता बेटा, डी केस कहता है जदों वस्तु सी और एफ के विचकार होवे। ठीक है, हुण वस्तु आप लागे लागे कर रहे हैं। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट। ठीक है, रे इधरों गई। ठीक है, कित्थों लंघनी आ, जिहड़ी समानांतर मुख धुरा दस्सिया सी कित्थों लंघदी आ, एफ चों। ठीक है, और जो रे देखो इत्थे सी आ, सॉरी एफ चों लंघ रही और पैरेलल हो जाती है। पहली रे पैरेलल सी, एफ चो लंघी, दूजी रे एफ चो लंघी तो पैरेलल हो गई। सो ठीक है, तुसी देखो कित्थे मीट कर रही हैं दोवें रेस आफ्टर रिफ्लैक्शन। अगर मैं इनू एक्सटेंड करा, वेट करो मैं तुहानूं दसदी, ए रे वापस आई टकरा के, ए भी रे वापस आई टकरा के। ठीक है, तो ये दोनों कुछ इत्थे मिलदियां पईयां। हुण तुसीं देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट उपर आ, इमेज थल्ले आ, प्रतिबिंब थल्ले आ। ऑब्जेक्ट का साइज़ अगर इन्ना है तो इमेज का साइज़ थोड़ा जिहा उहदे तो वड्डा है, इमेज सानूं थोड़ी वड्डी दिखाई दे रही है। सो आ ऑब्जेक्ट है बेटा, आ इमेज आ। सो इमेज का साइज़ थोड़ा वड्डा दिखाई दे रहा है। सो इहदे विच साडे कोल किवें बनेगी प्रतिबिंब, देखो सी तो थोड़ी जी पिछे बनेगा। ठीक है, सो सी तो परे बनया। ठीक है, सो सी तो परे बनेगा, वड्डा बनेगा यानी मैगनीफाइड बनेगा। ठीक है, लार्ज कह लो वैसे आम भाषा च, पर इहदे लई वर्ड जिहड़ा टिपिकली असीं मैगनीफाइड वरतना। वास्तविक बनया, रियल च मीट कीती है ना इत्थे। ठीक है, और उल्टा बनेगा। सो इस ते केस भी सेम है। अच्छा तुसीं देखो केस नंबर डी, केस नंबर डी च जदों वस्तु सी ते एफ दे विचकार सी ते इमेज जिहड़ी आ प्रतिबिंब जिहड़ा सी तो पिछे बनया। पर अगर मैं गल करा बी केस दी, वस्तु सी तो पिछे सी और उस केस च जिहड़ा इमेज है वो इत्थे बनया, यानी सी ते एफ दे विचकार बनया। सो केस नंबर बी ते केस नंबर डी दोवें आपस च
एक दूजे दे उल्टा ने। क्लीयर। जे वस्तु सी तो परे आ इमेज ਉਹਦੀ सी ਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ बनेगी। जे वस्तु सी ਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ इमेज कित्थे बनेगी सी तो परे बनेगी। क्लीयर। चलो नैक्सट चलते हैं। सो सी केस थोड़ा बिल्कुल ही अलग है, सी ते पई है तो सी ते ही बनेगी। क्लीयर। सो नैक्सट चलते हैं असी केस नंबर ई ते। केस नंबर ई कहता जो वस्तु एफ ते होवे। हुण कोशिश करो याद करो जिहड़ा पहला केस करता सी जो वस्तु अनंत ते सी ते इमेज कित्थे बनी सी एफ ते। हुण वस्तु एफ ते आ ते इमेज कित्थे बननी चाहिए आ यस अनंत ते यानी इनफिनिटी ते। यस ये केस जड़ा ई केस ए केस दे उल्टा बी केस डी केस दे उल्टा सीगा। ठीक है हुण असीं इहनूं देखते हैं। ओके देखो ऑब्जेक्ट कित्थे रखी मैं एफ के उत्ते। ठीक है सो एक रे आ जाएगी तुहानूं दस असीं जिहड़ी पैरेलल आ कित्थों पास करेगी फोकस चों। ठीक है हुण इत्थों सी चों जिहड़ी लंघ रही आ असीं कलर चेंज कर लेने बेटा इहदे वास्ते जिहड़ी सी चों लंघ रही आ वो सी चों ही वापस आएगी। ठीक है हुण देखो हुण इहने उत्ते ते जाके किते मिल नहीं रही आ पर हो सकदा किते बहुत दूर जाके मिल जान। सो किते बहुत दूर नूं असीं इत्थे जिहड़ा वर्ड आ वो अनंत यूज़ कर लैंदे यानी इनफिनिटी यूज़ कर लैंदे आ। सो इस केस दे विच जदों वस्तु एफ ते पई हुंदी आ ते वो अनंत ते ओहदी जिहड़ी इमेज आ वो बनदी आ और बहुत वड्डी साइज़ दी दिखाई देवेगी सानू इमेज। ठीक है और वास्तविक बनती आ रियल बनती आ और तुहानू पता ही आ उल्टा बनती आ। ठीक है उल्टा ही बनेगी ना मान लो इत्थे मीट कर दी मैं तुहानू इत्थे दिखा देनी तो इमेज इन्नी वड्डी बन गई वैसे इस तो भी दूर बनेगी। ठीक है सो बहुत वड्डी हाईली मैगनीफाइड। ठीक है क्लीयर ई केस। सो ई केस ए केस दे ओपोजिट आ गया ए ते ई आपस च ओपोजिट हो गए डी ते बी आपस च ओपोजिट हो गए सी सैपरेट केस आ। सो नैक्सट आंदा साडे कोल एफ केस। एफ केस भी बेटा अलग आ और वेरी इंपॉर्टेंट च आ इस करके इंपॉर्टेंट च आ बेटा देखो जदों वस्तु एफ ते पी दे विचकार होवे वैन द ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है देखो आ दर्पण आ हुण इत्थे एफ पी आ ए सॉरी ए पी आ एफ आ और ए सी आ वस्तु कित्थे बनाई मैं सेंटर च मतलब पी ते एफ दे विचकार बनाती। हुण देखो जो रे इधरों आ रही आ वो आफ्टर रिफ्लैक्शन दस्सिया सी एफ चों लंघेगी। ठीक है ते जड़ी रे एक रे तुसी बना लो जड़ी सी तुसी टच टू वो जड़ी कैप ना हैट जी बनाई उत्तों टच करना एक सी तो ही जाएगी। हुण देखो भावें नूं जिन्नी मर्जी एक्सटेंड कर लो। ठीक है आपस च इन्होंने किते नहीं मिलना क्योंकि चौड़ी होई जा रही ब्रॉड होई जा रही सो ये किते नहीं जाके मिलणगे। सो की होएगा अगर आपां इत्थों सी थोड़ा जिहा कर लेते हैं एक्सटेंड जस्ट फिर इदां हो गई तो यह इदां आ गई सारा रब कर लेते चलो। हम देखो इत्थों किते नहीं मीट करेगी इत्थों बैक साइड तो किते नहीं जाके मीट करेगी बट अगर आपां इहनूं एक्सटेंड कर दिए अगे तो तुहानूं दिख रहा होएगा कि इत्थे जाके ये आपस च दोनों मिल रही ने। ठीक है सो आपस च देखो इस पॉइंट पर जाके मिल रही ने तो ये साडे कोल की आ गई यस इमेज आ गई। ठीक है सो ऑब्जेक्ट कित्थे आ ऑब्जेक्ट मेरे कोल ए आ ते इमेज कित्थे आ इमेज मेरे कोल ए आ। तुसीं इत्थे देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट का जिन्ना साइज़ आ इमेज का उन्ना साइज़ वड्डा लग गया। सो ये वो केस आ बेटा जेड़े शेविंग मिरर दे टाइम जेड़ा अवतल दर्पण आपां शेव करन दे टाइम लोग जेड़े जेंट्स ने या आपां फेस नूं वड्डा वेखना है तो आपां बिल्कुल ही उस फेस नूं अपने नूं अवतल दर्पण दे फोकस बिंदु अते उहदे पोल दे विचकार जो रख लैने आ तो साडा फेस थोड़ा वड्डा नज़र आउंदा है। क्लीयर आ और सीधा नज़र आंदा है उल्टा नहीं ना नज़र आंदा ये सीधा नज़र आंदा है। सो उस केस च तुहानूं मैं दसदी दे प्रतिबिंब दे की गुण बनदे ने। ठीक है सो इस दे प्रतिबिंब दे गुण बनदे ने बेटा दर्पण दे पिछे देखो इत्थे दर्पण दे पिछे बनया। ठीक है वड्डा मैगनीफाइड हो गया वड्डी इमेज आ गई। आभासी तुहानूं दस्सिया सी जिहड़ा दर्पण दे पिछे बने आभासी मतलब आभास हुंदा है कि आपस च मिलदियां ने रेस रियल च नहीं मिल रही रियल च होए ते तुहानूं दस्सिया सी रियल हुंदियां ने पर इत्थे आभास हुंदा डॉटेड लाइन हमेशा ड्रॉ करनी है मिरर दे बैक साइड ते और इरैक्ट मतलब सीधा। सो ये वो केस है इस करके मैं तुहानूं कहा कि स्पैशल केस आ जिहड़ा असी करदे आ ये केस असी ज़्यादातर
ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਆ, ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਜੀ ਬੱਚਾ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਮਿਰਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਭਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਫ ਤੱਕ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਏ ਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਕੇਸਿਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਬ ਕੇਸਿਸ, ਔਰ ਐਫ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਸਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਏ ਔਰ ਈ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ऑपोजिट ने, बी एंड डी दोनों आपस च ऑपोजिट ने, सी यानी सी जड़ा केस ही जड़ा सी ते बन पई ऑब्जेक्ट सी ते ही इमेज बनेगी। और जड़ा लास्ट केस है एफ ए, इसका कि इंपॉर्टेंट क्या सी मैं, क्योंकि जो वस्तु एफ ते सी दे विचकार होवे, देखो ये विच वस्तु दी जड़ी प्रतिबिंब आ ओदा जड़ा आभासी आंदा है ते सिद्धा आंदा है। क्लीयर आ? सो इक्को केस आ, क्वेश्चन आंदा हुंदा कि कोई ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤੂ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਆਭਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਆਭਾਸੀ ਵਰਡ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਔਰ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਮਿਰਰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਫੋਕਸ ਤੇ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ पूछ सकते हो अपने क्वेश्चंस। थैंक यू।